Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.8 द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अ पॉलिटिकल हिस्ट्री। पहले हम लोग इसका राजनीतिक इतिहास देखेंगे। इन 1336 विजयनगर किंगडम was established by Harihara and Bukka, who were two brothers and served in the army of Muhammad bin Tughlaq. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। ये दोनों भाई थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में नौकरी की थी। They broke away from the Delhi Sultanate and established an independent state in Karnataka and established the capital city Vijayanagar on the banks of the river Tungabhadra in 1336। उन्होंने दिल्ली सल्तनत से संबंध तोड़कर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी के रूप में विजयनगर नामक शहर की स्थापना की। Their dynasty was called the संगम डायनेस्टी। अब देखिए इनके राजवंश को संगम राजवंश कहते थे। There are several theories with regard to the origin of this dynasty. इस राजवंश के उद्भव के संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। According to some scholars, they had been the feudatories of the Kakatiyas of Warangal, and after their fall, they served the Kambili state. कुछ विद्वानों के अनुसार में ये वारांगल के काकतिया के जागीरदार संबंध थे और इनके पतन के बाद इन्होंने काम्पीली प्रदेश में सेवा की। Another view says that they were the feudatories of the Hoysalas and belonged to Karnataka. कुछ अन्य विद्वानों के मत में ये लोग होयसल के समान थे और कर्नाटक से संबंध था इनका। हरियर एंड बुक्का were helped and inspired by contemporary scholar and a saint Vidyaranya for the establishment of their kingdom. हरियर और बुक्का द्वारा उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें उनके समकालीन विद्वान संत विद्यारण्य ने सहायता की और उनसे उन्हें प्रेरणा मिली। It believed that to commemorate the memory of their guru, the brothers established the city of Vidyanagar or Vijayanagar on the banks of the river Tungabhadra. विश्वास किया जाता है कि अपने गुरु की स्मृति बनाए रखने के लिए दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना की। The empire included people from different cultural regions, the Tamil, Telugu, and Karnataka region, who all spoke different languages and belonged to different cultures. इनके साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग थे, जैसे तमिल, तेलुगु और कर्नाटक क्षेत्र, जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे और भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संबंध रखते थे। Between 1336 and 1565, Vijayanagar was ruled by three different dynasties: Sangam, who remained in power till 1485, the Sulva, who remained in power till 1503, and the Tuluvas. The last dynasty was the Aravidu dynasty that ruled till 17th century. Foreign travelers like Niccolo Conti, Fernão Nunes, Domingo Paes, Duarto Barbosa, and Abdur Razak wrote about the magnificence of विजयनगर। 1336 से 1565 ईस्वी तक विजयनगर पर तीन भिन्न भिन्न राजवंशों ने राज किया। संगम, जो 1485 तक सत्ता में रहे, शल्लभ, जो कि 1503 तक सत्ता में रहे, और फिर हुए तुलवा राजवंश।
अंतिम राजवंश अराविदु था, जिसने 17वीं सदी तक शासन किया। विदेशी यात्रियों निकोलो कॉन्टी, फर्नाओ न्यूनेज, डोमिंगो पेस, दुआर्टो बारबोसा और अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की भव्यता के बारे में लिखा है। One of the most important rulers of the Vijayanagar state was Krishnadev Varaya, and the founder of the Tuluva dynasty. विजयनगर राज्य के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय थे, जो कि तुलुव राजवंश के संस्थापक थे। He was a great commander and an efficient administrator. वह एक महान सेनापति थे और बहुत ही कुशल प्रशासक थे। He fought a series of war with the independent kingdoms that came on the ruins of the Bahmani kingdom, maintained law and order, and dealt with the Portuguese influence in the Deccan. अब देखिए, उन्होंने बहमनी साम्राज्य के विनाश पर खड़े किए गए स्वतंत्र साम्राज्यों के साथ सिलसिलेवार लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित किया और दक्कन में पुर्तगालियों के प्रभाव से भी निपटे। He completely shattered the Adil Shahi forces of Bijapur first and attacked Gulbarg and set free 3 Bahmani princes who were imprisoned there. He helped them in recovering the throne of Gulbarg, and Krishna Dev himself took the title of Yavanna Rajya स्थापनाचार्य। अब देखिए, आगे बोल रहा है, उन्होंने बहमनी साम्राज्य के विनाश पर खड़े किए गए स्वतंत्र साम्राज्यों के साथ सिलसिलेवार लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित किया और दक्कन में पुर्तगालियों के प्रभाव से भी निपटे। पहले उन्होंने बीजापुर की आदिल शाही फौजों को पूरी तरह तहस नहस किया और गुलबर्गा पर आक्रमण करके वहां कैद में बंदी बनाकर रखे गए 3 बहमनी राजकुमारों को आज़ाद कराया। उन्होंने गुलबर्गा के राज्य सिंहासन को दोबारा प्रतिस्थापित करने में उनकी मदद की और स्वयं यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि अपनाई। आगे देखिए, कृष्णदेव राय built some fine stone temples and added impressive gopurams or gateways to many important South Indian temples. कृष्णदेव राय ने पत्थरों से कुछ मंदिर बनवाए और उन पर प्रभावशाली गोपुरम अथवा अनेक दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य द्वार बनवाए। He also founded a suburban township near Vijayanagar called Naglapuram after his mother. उन्होंने विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम नाम का एक उपनगर बसाया। Some of the most detailed descriptions of Vijayanagar come from his period. अब देखिए, विजयनगर से संबंध में कुछ बहुत ही विस्तृत विवरण उसी की शासन अवधि में के दौरान मिलती है। The famous temple of Tirupati developed during his period greatly as the deity there was his titular deity. तिरुपति का भव्य मंदिर उन्हीं की कलावधि में बना क्योंकि वहाँ की देवी उनकी आराध्य देवी थी। After Krishnadev Rai, his brother Achyutadev Rai ascended the throne in 1530 AD, who was also an important ruler. कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई अच्युत देव राय 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और वे भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। During his reign, the rival groups began to make his appearance. उनके शासनकाल में उनके विरोधी गुट सिर उठाने लगे थे। The struggle of power was mainly between Saluva
Veera Narasimha and Aravidu Ramarai, in which the latter emerged victorious. अब देखिए, शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष मुख्यतः सलुवा वीर नरसिंह और अरविदु राम राय के बीच था, जिसमें अरविदु राम राय की जीत हुई. Although Ram Rai did not assume the throne, yet he placed Sadashiv Rai on the throne and ruled as the de facto ruler. यद्यपि राम राय राजगद्दी पर नहीं बैठे, परंतु फिर भी उन्होंने सदाशिव राम को सिंहासन पर बिठाया और वास्तव में शासन स्वयं किया. He removed the old nobility and replaced it with those loyal to him. अब देखिए, उसने पुराने अभिजातियों को हटाकर उनके स्थान पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को रखा. राम राय tried to balance the Deccan powers by playing one against the other. Such a policy could not continue for a long period. राम राय ने दक्कन की शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर उनमें संतुलन पैदा करने की कोशिश की, परंतु यह नीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी. The Deccan states formed a confederacy and inflicted a crushing blow on the Vijayanagar armies in the Battle of Talikota. Ram Rai was killed. The Deccani armies entered Vijayanagar and reduced into ruins. Now the focus shifted to the east, where the Aravidu dynasty ruled from Pendukonda and later from Chandragiri near Tirupati. अब देखिए, दक्कन राज्यों का एक संघ बना लिया और तलिकोट के युद्ध में विजयनगर की सेनाओं को बहुत गहरा आघात पहुंचाया. राम राय इसमें मारा गया. दक्कनी सेनाओं ने विजयनगर में प्रवेश किया और इसे बिल्कुल तबाह कर दिया. अब इसका लक्ष्य पूर्व की तरफ केंद्रित हुआ, जहां पर पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से तिरुपति के पास अरविदु राजवंश ने शासन किया. आगे देखिए, आर्मी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन. In order to wage continuous warfare, there was a need to keep a large army. लगातार युद्धों को जारी रखने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत थी. Artillery was important and well-bred horses were maintained. तोपखाना का बहुत महत्व था और बहुत हृष्ट-पुष्ट घोड़े रखे गए थे. The Vijayanagar rulers imported high-quality horses from across the Arabian Sea, from Arabia and other Gulf countries. विजयनगर के शासकों ने अरब सागर के पार से अरब और अन्य खाड़ी देशों से उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े आयात किए. The port of Malabar was the center of this trade and the trade in other luxury commodities. The Vijayanagar rulers always attempted to control the port of Malabar. मालाबार बंदरगाह इस व्यापार और अन्य विलास संबंधी वस्तुओं के व्यापार का केंद्र था. विजयनगर के शासकों ने हमेशा मालाबार बंदरगाह पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास किया. Like Bahmanis, the Vijayanagar state also was familiar with the use of firearms and employed Turkish and Portuguese experts to train the soldiers in the latest weaponry of warfare. बहमनी की तरह विजयनगर राज्य भी आग्नेय अस्त्रों फायर आर्म्स के प्रयोग से परिचित था और युद्ध कौशल में आधुनिक अस्त्रों का प्रशिक्षण सिपाहियों को दिलाने के लिए उन्होंने तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त किया. One of the Rayas, Devaraya II, enrolled Muslim in his armed service, allotted them jagirs and erected a mosque
for their use in the city. अब देखिए, रायों में से एक देवराय द्वितीय ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में मुसलमानों को भी भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की और उनके उपयोग के लिए शहर में एक मस्जिद भी बनवाया. Such new techniques in warfare now revolutionized the warfare. युद्ध कौशल की इन नई तकनीकों ने रण कौशल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया. The walls of the forts to counter the firearms were now made thick, and special kinds of door with fortified walls front were constructed. On the walls of the fort, special kinds of big holes were made to rest the guns. Special kinds of parapets were constructed on the forts to put on the cannons to it. Firearms were used. Some firearms were small and comprised of rifles and pistols. Some, like cannons, were heavy and had to be put on bullock cart or on an elephant and pushed into the battlefield. अब देखिए, आग्नेय अस्त्रों का मुकाबला करने के लिए अब किलों की दीवारों को मोटा बनाया गया, उनकी मोटाई बढ़ाई गई और सामने की किलेबंदी करके मजबूत दीवारों के साथ विशिष्ट प्रकार के दरवाजों का निर्माण किया गया. किलों की दीवारों के अंदर तोपें को रखने के लिए विशेष प्रकार के बड़े बड़े झरोखे बनाए गए. किलों पर विशेष प्रकार की प्राचीरों का निर्माण कराया गया जिन पर तोपें रखी जा सकें. कुछ आग्नेय अस्त्र छोटे थे और इनमें राइफल और पिस्टल शामिल थे. कुछ तोपों की तरह भारी भरकम थे और उन्हें बैलगाड़ियों या हाथियों पर रखा जाता था और युद्ध के मैदान में ढकेला जाता था. आगे देखिए. One of the most important characteristics of the Vijayanagar administration was the अमर नायक सिस्टम. विजयनगर प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहां की अमर नायक प्रणाली थी. In this system, the commander of the Vijayanagar army was called the Nayak. Each Nayak was given an area for administration. इस प्रणाली में विजयनगर की सेना के सेनापति को नायक कहा जाता था. प्रत्येक नायक को एक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र दिया गया था. The Nayak was responsible for expanding agricultural activities in his area. नायक की अपने अधिकार के प्रशासकीय क्षेत्र में खेती की गतिविधियों के विस्तार करने की जिम्मेदारी थी. He collected taxes in his area and with this income maintained his army, horses, elephants and weapons of warfare that he had to supply to the Raya or the Vijayanagar ruler. अब देखिए, वह अपने क्षेत्र से कर लेता था, टैक्स लेता था और अपनी इस आय से, कमाई से सेना, घोड़े, हाथियों और युद्ध के लिए हथियारों का रख रखाव करता था जिनकी आपूर्ति उसे अपने राय या विजयनगर के शासक को करनी पड़ती थी. द नायक वॉज ऑल्सो द कमांडर ऑफ द फोर्ट्स. अब देखिए, नायक किलों का भी सेनापति होता था. Some of the revenue was also used for the maintenance of temples and irrigation work. लगान की कुछ राशि मंदिरों के रखरखाव और सिंचाई के कामों के लिए भी खर्च की जाती थी. The Amar Nayaks sent tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty. अमर नायक वार्षिक रूप से राजा को नजराना भेजता था और अपनी वफादारी को प्रमाणित करने के लिए उपहार लेकर राज दरबार में खुद उपस्थित होता था. In the 17th century, several of these Nayaks became independent and established separate states. 17वीं सदी में इन नायकों में से अनेक नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और
पृथक राज्यों की स्थापना की। The feudal Nayakars used to maintain their own soldiers, horses, and elephants. They were a powerful section that challenged the Vijayanagar authority, weakened its internal structures, and contributed to the defeat of the Vijayanagar in the Battle of Talikota. अब देखिए, सामंती नायकर अपने निजी सिपाही, सैनिक बल और हाथी रखते थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली वर्ग था जिसने विजयनगर के प्राधिकार को चुनौती दी, इसकी आंतरिक संरचनाओं को कमजोर किया और तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर की पराजय में अपना योगदान दिया। आगे देखिए 11.8.2 कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विजयनगर एंड द बहमनीज। विजयनगर और बहमनियों में संघर्ष। There were constant conflicts between the Vijayanagar and the Bahmani kingdoms over the control of Raichur Doab, which was the land between river Krishna and Tungabhadra. विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में रायचूर दोआब, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी, पर नियंत्रण पाने के लिए परस्पर लगातार युद्ध होते रहते थे। This area was fertile and rich in mineral resources. यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और खनिज संसाधनों से भरपूर था। The famous diamond mines of Golconda were located in the eastern part of the Doab region. गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खदानें इसी दोआब क्षेत्र की पूर्वी भाग में स्थित थी। The geography of both the kingdoms was such that expansion was possible only across Tungabhadra in the Deccan. दोनों साम्राज्यों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इनका विस्तार दक्कन में तुंगभद्रा के पार के क्षेत्र में ही संभव था। It appears that the battles between the two were not conclusive and the status quo was maintained. अब देखिए, ऐसा लगता था कि लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला और यथास्थिति को ही बनाया रखा गया। Sometimes Bahmani had an advantage and sometimes विजयनगर had an advantage. कभी बहमनियों के हाथ ऊपर हो जाता तो कभी विजयनगर वालों की सरपस्ती हो जाती, वो ऊपर हो जाते। For instance, in 1504, the Bahmani managed to conquer the Raichur Doab. उदाहरण के लिए 1504 में बहमनियों ने रायचूर दोआब पर जीत हासिल कर ली। However, with the ascent of Krishnadev Rai, the Bahmanis lost Raichur, Mutkal, Nalgonda and other inland towns. आगे देखिए, बोल रहा है, परंतु कृष्णदेव राय के सिंहासन पर बैठने के बाद बहमनी रायचूर, मुदकल, नालगोंडा और कुछ अन्य अंदरूनी शहरों को हार गए। An important result of these wars was that both the powers were so involved amongst themselves that they never realized the increasing power of the Portuguese on the coast of South India. Besides, continuous warfare exhausted the resources of both the states and weakened them. इन युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि दोनों शक्तियां आपस में युद्ध करने में इतना डूबी हुई थी कि उन्होंने भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर पुर्तगालियों की बढ़ती ताकत को महसूस ही नहीं किया। इसके अतिरिक्त लगातार युद्धों ने दोनों राज्यों के संसाधनों का पूरी तरह से दोहन कर दिया और वे दोनों बहुत कमजोर हो गए। The other areas of conflict were the Marathwada region and the deltaic region of Krishna Godavari. Both regions had fertile areas and important ports that controlled trade to the foreign countries. For instance, the fertile area of Marathwada region was the Konkan belt that also had the port of Goa, which was an important region for trade and export and import,
especially import of horses from Iraq and Iran. युद्ध के अन्य क्षेत्र थे मराठवाड़ा क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों की जमीन बहुत उपजाऊ थी और इनमें बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां से विदेशों से व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। उदाहरण के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्र की कोंकण पट्टी, जिसमें गोवा बंदरगाह स्थित था, जो व्यापार और निर्यात खास तौर पर ईरान और इराक से घोड़े आयात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आगे देखिए। Often the battles between the Vijayanagar and the Bahmani states are perceived as Hindu-Muslim conflicts. आम तौर पर विजयनगर और बहमनी प्रदेशों में होने वाले युद्धों को हिंदू मुस्लिम संघर्ष माना जाता था। The above reasons show that the struggle was not due to any religious difference. अब देखिए, ऊपर उल्लिखित कारणों से यह पता चलता है कि ये लड़ाइयाँ किसी धार्मिक भेदभाव की वजह से नहीं थीं। Territorial and economic motives were the main cause for the war. अब देखिए, युद्ध का मुख्य कारण प्रादेशिक जगहों को जीतना और आर्थिक उद्देश्य था। Despite hostilities between the two states, there were times when they also cooperated with each other. अब देखिए, दोनों राज्यों में आपसी दुश्मनी के बावजूद ऐसे वक्त भी आए जब दोनों ने एक दूसरे की सहायता भी की। कृष्णदेव राय, फॉर एग्जाम्पल, सपोर्टेड सम claimants to power in the sultanates and took pride in the title establisher of the Yavana kingdom. Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession disputes in Vijayanagar following the death of Krishnadev Rai. There were also sharing and exchange of idea, especially in the field of art, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। अब देखिए, उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनत में सत्ता के कुछ दावेदारों का समर्थन किया और यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि देते हुए गर्व अनुभव किया। इसी प्रकार कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगर के उत्तराधिकारी की लड़ाइयों को सुलझाने में समझौता कराया। परस्पर विचारों के आदान प्रदान, खास तौर से कला, साहित्य और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में भी दोनों ने भागीदारी दी।